چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا دورہ جنوبی پنجاب ملتان میں مصروف ترین دن گزارا گیا۔ مختلف وفود سے ملاقاتیں کی۔ کہتے ہیں سلیکٹڈ وزیر اعظم نے 20,000 خاندانوں سے روٹی، کپڑا اور مکان چھین لیا۔ آنے والے وقت میں پیپلز پارٹی کا وقت ہے، عوام کو خوشحال رکھیں گے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے ملتان میں مصروف دن گزارا۔ بلاول ہاؤس میں مختلف وفود سے ملاقات کی اور دربار حضرت خواجہ سلمان تونسوی کے سجادہ نشین پیر خواجہ عطا اللہ شاہ سے بھی ملے۔ اس موقع پر ملتان سے مسلم لیگ کاف کے ٹکٹ ہولڈر میاں مظہر عباس اور مظفر گڑھ سے MQM کے ٹکٹ ہولڈر رانا امجد علی نے پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا۔ لیا سے سابق وفاقی وزیر بہادر خان سہڑ بھی پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے اور بلاول بھٹو زرداری کو 11 ستمبر کو عشائیہ میں شرکت کی دعوت دی۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا قافلہ سیداں والا بائی پاس پر پہنچا، جہاں اراکین اسمبلی اور جیالوں نے پرتپاک استقبال کیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری جنرل سیکرٹری ملتان AD خان بلوچ اور سابق صوبائی وزیر ناظم شاہ کے گھر گئے اور فوت شدگان کے لیے فاتح خوانی کی۔ اس موقع پر بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ سید ناظم شاہ کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ سلیکٹڈ حکومت نے 20,000 خاندانوں کو بے روزگار کر دیا۔ آنے والا وقت پیپلز پارٹی کا ہے۔ سید ناظم حسین شاہ کا جو پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے خدمت ہے، جو جمہوریت کے لیے خدمت ہے، جو غریب عوام کے لیے خدمت ہے، جو ملتان کے عوام کے لیے خدمت ہے، وہ تاریخ میں لکھا جائے گا۔ بلاول بھٹو زرداری سابق ضلعی سینئر نائب صدر علی حیدر زمان گردیزی کی رہائش گاہ بھی گئے اور ان کے بھائی کرنل ریٹائرڈ ناصر زمان گردیزی، ان کے بہنوئی مخدوم راجو گردیزی کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا۔ اس موقع پر صدر جنوبی پنجاب مخدوم احمد محمود، سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی، فیصل کریم کنڈی، خواجہ رضوان عالم، نتاشا دولتانہ، سید عبدالقادر گیلانی، MPA علی حیدر گیلانی، عبدالقادر شاہین اور حیدر زمان قریشی سمیت دیگر شخصیات بھی ان کے ہمراہ تھیں۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر جنید انور کے ساتھ امجد ملک، ملتان۔ ناظرین، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کل ڈی جی خان پہنچیں گے، ورکر کنونشن سے خطاب کریں گے، جبکہ کارکنان اور پارٹی عہدیداران نے تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کل ڈی جی خان پہنچیں گے، ورکرز کنونشن سے خطاب بھی کریں گے، جبکہ کارکنان اور پارٹی عہدیداران کی جانب سے تیاریاں مکمل کر لی گئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کل ڈیرہ غازی خان پہنچیں گے۔ جنرل سیکرٹری ساؤتھ پنجاب حاجی ریاض کا پریس کانفرنس میں کہنا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری کا شاندار استقبال کیا جائے گا۔ چیئرمین بلاول بھٹو صاحب ڈسٹرکٹ راجن پور اور ڈسٹرکٹ لیا اور ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ کا دورہ کریں گے اور انشاءاللہ تعالی ایسے ہی جنوبی پنجاب کے اندر تمام اضلاع کا انشاءاللہ اور بعد میں وسطی پنجاب کا انشاءاللہ تعالی بلاول بھٹو صاحب کا وزٹ ہوگا اور انشاءاللہ تعالی اپنے ورکر کنونشن میں اب ورکروں سے، اپنے پارٹی کارکنوں سے چیئرمین صاحب کی ملاقات بھی ہوگی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈویژنل صدر میر آصف خان دستی کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری کل ورکر کنونشن سے خطاب بھی کریں گے۔ ڈیرہ غازی خان اور مضافات سے کارکنان بڑی تعداد میں شرکت کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب سردار دوست محمد خان کھوسہ صاحب کی دعوت پر کل 5 ستمبر بروز اتوار کو شام 4 بجے ڈیرہ غازی خان تشریف لا رہے ہیں۔ ان کا ڈیرہ غازی خان میں تاریخی استقبال ہوگا انشاءاللہ۔ پیپلز پارٹی کے عہدیداران کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری پہلی بار ڈیرہ غازی خان آ رہے ہیں۔ ان کی آمد کے حوالے سے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ اس موقع پر ڈویژنل جنرل سیکرٹری ریاض خان، ڈویژنل نائب صدر غلام سرور دلشاد، ڈویژنل سیکرٹری انفارمیشن سردار عباس گور چانی، ڈویژنل صدر یوتھ حافظ محمد جہانگیر، ضلعی جنرل سیکرٹری علی مراد کھتران بھی موجود تھے۔ کیمرہ مین ریحان علی کے ساتھ عاشر اشفاق روحی، ڈیرہ غازی خان۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی 90 شاہراہ قائد اعظم پر کھلی کچہری کا انعقاد۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار 4 گھنٹے تک مسلسل عوام کے مسائل سنتے رہے۔ جنوبی پنجاب کے دور دراز علاقوں سے آئے لوگوں نے اپنے مسائل بیان کیے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی کھلی کچہری میں لوگوں سے فردن ملاقاتیں کی۔ وزیر اعلیٰ نے سائلین کے مسائل کے حل کے لیے موقع پر ہی احکامات جاری کر دیے۔ جنوبی پنجاب کے 15 محکموں کے سیکرٹریز، پولیس افسران اور متعلقہ حکام بھی موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ نے لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے متعلقہ افسران کو ہدایت جاری کی۔ کھلی کچہری میں دور دراز علاقوں سے آنے والی خواتین نے بھی شرکت کی۔ عثمان بزدار نے خواتین کے مسائل سن کر فوری حل کے احکامات جاری کر دیے۔
मुल्तान में कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी, वज़ीर-ए-आज़म के मामले खसूसी मलिक आमिर डोगर को नोटिस जारी कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर और रिटर्निंग ऑफिसर मोहम्मद सलीम अख्तर ने मलिक आमिर डोगर को 7 सितंबर को तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक रुकने कौमी असम्बली मलिक आमिर डोगर को इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लेने पर नोटिस जारी किया गया। नोटिस उम्मीदवार वार्ड नंबर 1 राना मोहम्मद अशरफ और उम्मीदवार वार्ड नंबर 2 गुलाम जलानी की दरख्वास्त पर दिया गया। मलिक आमिर डोगर को डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर और रिटर्निंग ऑफिसर के सामने पेश होने की हिदायत की गई है। कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में ज़ाब्ता इखलाक पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। अभी आपको बताएं, मुल्तान में कोरोना के हवाले से हुकूमती अहकामात हवा हो चुके हैं। इंतजामिया नो वैक्सीन नो पेट्रोल के हुक्म पर अमल दरामद तक नहीं करवा सकी। रोह की टीम ने हकायक से पर्दा उठा दिया। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। की तरह मुल्तान में भी इस वक्त नो वैक्सीन नो पेट्रोल सर्विस का एक स्लोगन मुतारिफ करवाया गया है, जिसके ऊपर बड़े बड़े पंजाब हुकूमत और इंतजामिया की तरफ से दावे भी किए जा रहे हैं। आज हम एक स्टिंग ऑपरेशन में चेक करेंगे क्या मुल्तान के अंदर इस चीज़ के ऊपर भरपूर इम्प्लीमेंट करवाया जा रहा है या नहीं। आज की इस रिपोर्ट में हमारे साथ रहिएगा। हम कुछ पेट्रोल पंप्स पर जाएंगे और वहाँ पर जाकर पेट्रोल लेने की कोशिश करेंगे और देखेंगे क्या ये हुक्म जो है वो इम्प्लीमेंट हो भी रहा है या नहीं। हमारे साथ रहिए। एक मिनट रुकना। एक मिनट, ये आप वो नहीं देख रहे, कोरोना SOPs को कहा गया है कि जिसकी वैक्सीनेशन है उसको पेट्रोल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। नहीं पूछा आपने ना, चलें बस रहने में। एक मिनट रुको, ये तो नहीं पूछा जा रहा कि ये वैक्सीन है या नहीं है, तो आपने मुझसे तो नहीं पूछा ना। आपका पेट्रोल पंप नहीं, किसी पे भी नहीं पूछा। क्या कहें, बैनर बनने के लिए दे दिए हैं मैंने, दिखाऊं आपको, आ जाए। ठीक है, बस कोई नहीं, बैनर बन गए, फिर करेंगे। अभी इम्प्लीमेंट तो कर देना। इम्प्लीमेंट कर दो, जैसे पूछो कार्ड है आपके पास, हाँ ठीक है ना, कार्ड का पूछो, वैक्सीन कार्ड है। और अभी वैसे ये है कि हम कह रहे थे कि यार इसको बनवा लो, बनवा लो। नहीं, मोबाइल पे भी मैसेज होता है, वो भी देख सकते हैं। हाँ, या मैसेज दे, उसके बाद आप उसको दे। चलें, शुक्रिया, मेहरबानी। एक मिनट रुकना। ये बताएं कि आप किसी से पूछ के डाल रहे हैं कि आपके पास कोरोना वैक्सीनेशन है या नहीं है, क्योंकि पेट्रोल तो तब मिल रहा है कि जिसकी वैक्सीनेशन हो। मुझसे तो नहीं पूछा आपने। अभी वो 2-3 लोग हैं, उनसे भी नहीं पूछा आपने। बस रहने। तो फाइनली हमने तमाम तर पंप्स को चेक किया, जिसके बाद नतीजा ये निकला कि शायद गवर्नमेंट या इंतज़ामिया रूल्स बना देती हैं लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट करवाना भूल जाती हैं। और यही कुछ कोरोना SOPs के हवाले से पूरे मुल्तान में हो रहा है, जो कि जनूबी पंजाब का हब है। तो दीगर शहरों की क्या सूरत हाल होगी आप बाखूबी वाकिफ होंगे। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ मोहसिन मुल्तान। दूसरी जानिब नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस इन एक्शन। कोरोना वायरस के पेश नजर मोटरवे पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का दाखिला बंद कर दिया गया। पाबंदी की इतलाक 4 सितंबर से ताहुक्म सानी जारी रहेगा। NCOC की हिदायत के मुताबिक मोटरवे M5 और M4 पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के दाखिले पर पाबंदी आयद की गई है, जिसका इतलाक 4 सितंबर से ताहुक्म सानी जारी रहेगा। मोटरवे तर्जुमान के मुताबिक अशिया खुलोनोश और तेल सप्लाई की गाड़ियों को मोटरवे पर महदूद अमले और SOPs के साथ सफर की इजाजत होगी, जबकि प्राइवेट गाड़ियों को भी दाखिले की इजाजत होगी। मुहलिक वायरस के फैलाव के पेश नजर पाबंदी लगाई गई है। पंजाब स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट ने 15 शहरों में मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज 4 सितंबर से 12 सितंबर तक बंद करने का फैसला कर लिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक फैसला नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के फैसलों की रोशनी में किया गया। रावलपिंडी, गुजरात, गुजरांवाला, शेखुपुरा, सियालकोट, लाहौर, फैसलाबाद के इलाके शामिल।
आगे बढ़े, आपको बताएं नाज़रीन, जनूबी पंजाब में कोरोना की चौथी लहर मजीद खतरनाक हो गई है। एक ही रोज में 441 केसेस सामने आ चुके। मुल्तान में शरह 15.4, जबकि डीजू खान में 11% रिकॉर्ड की गई। मुल्तान में 105 केसेस रिपोर्ट हुए, एक मरीज जाँ बहक, जबकि सरगोदा में 80, डेरा गाजी खान 69 और बहावलपुर में 46 केसेस रिपोर्ट हुए। रहीम यार खान में 40, भक्खर 28, मुजफ्फरगढ़ और राजनपुर में 22 अफराद मुतासर, जबकि मियावाली में 13, खानेवाल में 10 और बहावल नगर में 8 केसेस सामने आए। नाज़रीन, सेक्रेटरी DRTA डेरा गाजी खान में इनेक्शन हो चुके हैं। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियों पर 13 गाड़ियों को बंद कर दिया गया, जबकि 2 रोज के दौरान 1,03,000 रुपए के जुर्माने भी किए गए। सेक्रेटरी DRTA डेरा गाजी सना उल्ला रियाज मुतहरिक हो चुके। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियों पर 13 गाड़ियां बंद कर दी, जबकि 2 रोज के दौरान ट्रांसपोर्टर्स को 1,03,000 रुपए के जुर्माने भी किए गए। सेक्रेटरी DRTA का कहना था कि कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ट्रांसपोर्टर कोरोना SOPs का खास ख्याल रखें। वैक्सीनेशन के बगैर किसी मुसाफिर को सफर की इजाजत नहीं दी जाएगी। बगैर वैक्सीनेशन सवारियां उठाने वाले ट्रांसपोर्टर के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। कुछ बात करें महंगाई पर तो गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी खाना तक मुश्किल हो चुका है, जबकि फ्लोर मिल्स मालिकान ने आटे का 20 किलोग्राम का थैला 30 रुपए महंगा कर दिया। परचून कीमत 1180 रुपए हो गई, फी किलो कीमत 65 रुपए हो चुकी। मुल्तान की शहरी कीमतें बढ़ने पर बरस पड़े। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के तमाम फ्लोर मिल्स ने आटे का 20 किलोग्राम का थैला 30 रुपए महंगा कर दिया, जिसके बाद 20 किलो आटे की परचून कीमत 1180 रुपए तक जा पहुंची, जबकि मार्केट में आटे की फी किलो कीमत 65 रुपए हो गई। फी किलो कीमत 5 रुपए का इजाफा हुआ। आटा जो है, आटा इतना महंगा कर दिया है कि हमारी पहुंच से दूर हो गया। हम तो भाई एक टाइम खाते हैं, एक टाइम सोचते हैं खाना क्या है। ये हाल हुआ है, आटे की इतनी महंगाई कर दी है। कुछ कहने की आदमी इमरान खान को चाहिए कि रिलीफ दे दे, कोई मेहरबानी करे गरीब के साथ। बिजलियों के रेट भी महंगे, हर चीज महंगी है, सस्ती कुछ भी नहीं है। महंगाई हो रही है इस तरह तो गरीब आवाम मरे जा रही है। वो इमरान खान सिर्फ 2 बंदों के पीछे है, एक शहबाज शरीफ और एक नवाज शरीफ। महंगा आटा मजीद महंगा होने से परेशान शहरी हुकूमत पर फट पड़े। महंगाई से सताए शहरियों का कहना था कि वजीर आजम गरीब तबके को रिलीफ फराहम करने के लिए कोई इकदामात नहीं कर रहे। बढ़ती हुई महंगाई के बायस घरों के चूल्हे ठंडे हो गए हैं। आटा बहुत ही महंगा, हम तो इतनी गरीबी में मर रहे हैं। बिल आ रहे हैं ज्यादा, बिजलियों के बिल आ रहे हैं, आटा भी महंगा करा हुआ है इन्होंने। और क्या करें, हम तो मजबूर हैं। हम तो खुद पता नहीं कैसे कर रहे हैं, कैसे खा रहे हैं। हम आटा ही नहीं मिल रहा, चीनी भी ब्लैक बेच रहे हैं सारी। ना चीनी आ रही है मार्केट में, दुकानों पर ना आटा मिल रहा है। लगे क्या करें। शहरियों का कहना था दिन ब दिन महंगाई बढ़ने से आवाम की कुव्वत खरीद जवाब दे गई है। ऐसे में हुकूमत को आटे की कीमत में कमी यकीनी बनानी चाहिए ताकि गरीब लोगों को 2 वक्त की रोटी मैसर हो सके। कैमरामैन आमिर शाह के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। मियावाली में भी महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। लोहे की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। गरीबों के लिए घर बनाना मजीद मुश्किल हो चुका। मियावाली में लोहा महंगा हो गया। 10 से 15 रोज में 1 किलो लोहे की कीमत में 30 रुपए इजाफा हो गया। दुकानदार का कहना था कि 4,000 रुपए में बनने वाले लोहे के दरवाजे की कीमत 8,000 हो गई है। चौखट और खिड़कियों की कीमत भी दुगनी हो गई है। इतना ज्यादा रेट चढ़ गया है, हम खुद परेशान हैं। दुकान का किराया, दुकान का बिल वो हमने अदा करना होता है और बच्चों का पेट पालना होता है। जब चीज लेने जाते हैं तो चीज एक तो मिलती है तो बहुत महंगी मिलती है। हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। खरीदारों का कहना था कि बच्चों का पेट पालें या घर बनाएं। 2,000 लेकर वॉशरूम का दरवाजा लेने आया, लेकिन कीमत में दुगना इजाफा हो गया। मैं अपनी पॉकेट में 2,000 रुपए लेके आया हूँ। 2,000 से पहले मिल जाता था, लेकिन अब मैं मजदूर आदमी, गरीब आदमी हूँ। इतना महंगा हो गया है कि हम बच्चों का पेट पालें और दरवाजा लें, क्या करें हम। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा किया है ताकि गरीब लोग भी इज्जत की जिंदगी बसर कर सकें। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियावाली। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। हुबुल वतनी से सरशार बाहिम्मत और नडर लेफ्टिनेंट कर्नल इफ्तिखार अहमद शहीद, जिन्होंने ऑपरेशन ज़रबे असब में दुश्मन के दांत खट्टे करते हुए जामे शहादत नोश किया। आज भी शहीद बेटे की याद वालिदैन की आंखें नम कर देती है। मुल्तान से देखिए गौहर रहमान की रिपोर्ट।
मुल्तान से ताल्लुक रखने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल इफ्तिखार अहमद शहीद की जुर्रत ऐसी थी कि ऑपरेशन ज़र्बे अज़ब के दौरान बन्नू के महाज पर दुश्मन को ललकार कर जवाबी फायरिंग करके दुश्मन को पसपा किया। इन्होंने 23 जून 2015 को जख्मों की ताब ना लाकर जामे शहादत नोश किया। फौज में पले बड़े और यही अज़म लेके बड़े हुए और अल्लाह ताला ने उनके अंदर ये जज्बे थे मुल्क के खिदमत के और अल्लाह ताला ने उनको ये एजाज़ दिया। लेफ्टिनेंट कर्नल इफ्तिखार अहमद के वालिदैन बेटे की शहादत पर आज भी फख्र महसूस करते हैं, लेकिन बेटे की जुदाई आज भी आंखें नम कर देती है। इनका कहना था कि जरूरत पड़ने पर पाक सरजमीन के लिए तमाम बेटे कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अब दुआ मांगा करते थे, अल्लाह मरज़ुकनी शहादतन फी सबीलिका व मौतन फी बल्दे रसूलिक औ कमा क़ाल, मौला मुझे शहादत नसीब करना और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शहर में नसीब करना। लेफ्टिनेंट कर्नल इफ्तिखार अहमद शहीद ने कैरियर के दौरान बेशुमार एजाजात अपने नाम किए, जबकि इनको बहादुरी और जुर्रत पर सदर मुमलिकत पाकिस्तान की जानिब से 23 मार्च 2016 को सितारे बसालत से भी नवाजा गया। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ गौहर रहमान, मुल्तान। चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो का रेस्क्यू ऑपरेशन भीख मांगते 10 बच्चों को हिफाजती तहवील में ले लिया गया है। चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो की जानिब से हिफाजती तहवील में लिए गए बच्चों में 12 साला चांद, 12 साला असदुल्ला, 12 साला अली हुसैन, 11 साला अब्दुल रहमान, 11 साला समीनुल्ला, 11 साला उसामा, 12 साला हसन, 13 साला मुस्तकीन, 8 साला गुलाब और 8 साला उमर शामिल हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का शहर भर में बच्चों से गदागरी के खिलाफ रेस्क्यू ऑपरेशन है। हिफाजती तहवील में लिए गए बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सेंटर मुंतकिल कर दिया गया, जबकि लवाहिकीन चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो या चाइल्ड हेल्पलाइन 1121 पर राब्ता कर सकते हैं। नाज़रीन, सोशल वेलफेयर ने तमाम एनजीओज़ को अपने रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए डेडलाइन दे दी है। सोशल वेलफेयर मुल्तान की जानिब से तमाम एनजीओज़ को अपने रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए डेडलाइन दी गई। एनजीओज़ ने अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, वो 30 सितंबर से पहले ऑनलाइन डाटा जमा करवाएंगे। सेल्फ रजिस्टर एनओजीज़ को फिलाही कामों की मद में सरकारी फंड्स फ्राहम किए जाएंगे। एनजीओज़ को रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट और इदारे की तमाम तफसीलात ऑनलाइन जमा करवानी होंगी। आगे बढ़े, आपको बताएं एसएसपी इन्वेस्टिगेशन आमिर खान नयासी की अदालती तामील कनिंदगान अफसरान से मीटिंग हुई है। अहकामात जारी किए कि अदालती वारंट और समन की बर वक्त तामील मुमकिन बनाई जाए। पुलिस लाइन में होने वाली मीटिंग में तमाम थानों के अदालती अहकामात पर अमल दरामद कराने वाले अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर एसएसपी इन्वेस्टिगेशन आमिर खान नयासी ने अहकामात जारी किए कि अदालती वारंट और समन की बर वक्त तामील मुमकिन बनाई जाए। इसके अलावा अदालती मफरूरों और इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए लाहे अमल तश्कील दिया जाए ताकि जुराइम पर काबू पाया जा सके। आगे बढ़े, आपको बताएं सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब लियाकत अली चट्ठा का विहाड़ी चौक के मियाबाकी जंगल का दौरा। डीजीपीएचए ने प्रोजेक्ट के मुतालिक ब्रीफिंग दी। इस मौके पर डीजीपीएचए सैयद शफकत रजा, डीजीपीएचए ने मियावाकी की जंगल मंसूबे से मुतालिक ब्रीफिंग दी, जबकि डायरेक्टर, इंजीनियर्स और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। सेक्रेटरी हाउसिंग लियाकत अली चट्ठा का कहना था कि शहर में मियावाकी जंगल बनाना एक ऐसा कदम है, इससे शहर के दर्जा हरारत में भी कमी आएगी। ताहम EHA जल्द अज जल्द दीगर मियावाकी जंगल बनाने के मंसूबे मुकम्मल करे। दूसरी जानिब डीपीओ मुजफ्फरगढ़ ने थाना सदर अलीपुर में खुली कचहरी लगाई है। साइलिन पुलिस के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। डीपीओ मुजफ्फरगढ़ ने थाना सदर अलीपुर में खुली कचहरी लगाई। डीएसपी यूसुफ हारून भी मौजूद थे। डीपीओ की खुली कचहरी सिर्फ कागजी कार्रवाई तक महदूद रही। साइलिन ने पुलिस के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। साइलिन का कहना था कि खुली कचहरी में दरखास्तें वसूल कर ली जाती हैं, जबकि कार्रवाई नहीं की जाती। चैम्बर ऑफ कॉमर्स रहीम यार खान और नेशनल प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन के बाहमी ताउन से कॉटन जैनिंग एंड स्पिनिंग के हवाले से सेमिनार हुआ है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। गढ़हान चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कॉटन जीनिंग एंड स्पिनिंग सेक्टर का आगाही सेमिनार हुआ। सीनियर वाइस सदर चौधरी खलील अहमद, नेशनल प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन इंचार्ज साउथ रीजन अली हसन,
इन सर्विस एग्रीकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर मियां इम्तियाज अहमद, हाजाफरी यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नवाज और कार्टन इंजीनियर्स की बड़ी तादाद शरीक हुई। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर वाइस सदर चौधरी खलील अहमद ने आगाही सेमिनार को कार्टन इंजीनियर्स के लिए मुफीद करार दिया। जो सेशन था बेसिकली लेबर और कार्टन के हवाले से था। अभी लेबर को हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं, उनके हुकूक की बात थी, उनके बेहतर से बेहतर बेनिफिट उनको देने की मुतल्लिक बात थी और कार्टन सेक्टर को बेहतर करने की बात थी। ट्रेनर अली हसन और सुहेल नदीम ने फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों के हकूक और चाइल्ड लेबर रोकने के हवाले से आगाही दी। ट्रेनर अली हसन का कहना था कि मजदूरों को अगर मुकम्मल सहूलियात दी जाएं तो वो जज्बे से काम करेंगे, जिससे फैक्ट्रियां खुशहाल होंगी। जिनिंग, स्पिनिंग और जो ग्रोइंग के हवाले से जो प्रॉब्लम्स हैं या जो कोई इश्यूज हैं, उनमें हम किस तरह जो है वो बेहतर प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं और बेहतर तरीके से इन इश्यूज़ को डिस्कस भी करें और रिजॉल्व भी करें। बहुत अच्छी इनपुट्स आई हमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर्स की तरफ से, तो इंशाल्लाह अभी हमें उम्मीद है कि हम जब अगली दफ़ा आएंगे तो मज़ीद कुछ इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स के साथ और कुछ मज़ीद अच्छे सोल्यूशंस के साथ इनके पास आएंगे। सेमिनार में कोरोना SOPs का खास ख्याल रखा गया। शुल्का का कहना था कि इस तरह के सेमिनार से न सिर्फ कार्टन इंजीनियर्स को आगाही मिलती है, बल्कि काम और कपास से मुआशी तौर पर मजबूत होने के मौके भी मुयस्सर होते हैं। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही रहीम यारहान। नाज़रीन, आज हिजाब का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मुल्तान में भी बहुत सी खवातीन हिजाब ओढ़ती हैं। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। बहुत सी खवातीन हिजाब को अपने तहफ़्फ़ुज़ का ज़रिया समझती हैं। सियासत, शोबिस, फैशन और बहुत से शोबों में मुसलमान खवातीन हिजाब के साथ काम कर रही हैं। खातूने अव्वल बुशरा बीबी, बारोब शख्सियत की मालिक रुकने सिंध असम्बली नुसरत सहर अब्बासी, पाकिस्तान की मारूफ मेकअप आर्टिस्ट मुसरत मिसबा की मिसाल सबके सामने है। बाहिजाब अमरीकी मॉडल हलीमा अदन ने पर्दा करने वाली लड़कियों के लिए फैशन और मॉडलिंग के मैदान में मिसाल कायम की। हिजाब जो है वो पूरी एक तहजीब का नाम है। ये सिर्फ 1.5 गज का कपड़ा नहीं है और ये हिजाब मुसलमान औरत की तौकीर है, इज्जत है। अल्लाह को भी हिजाब पसंद है। कई मशहूर अदाकाराओं ने शोबिस इंडस्ट्री को खैराबाद कहकर दीन और पर्दे का रास्ता इख्तियार किया, जिनमें सना खान, नूर बुखारी, सनम चौधरी, राबी पीरजादा और बहुत से नाम शामिल हैं। बहुत सी लड़कियां हिजाब के बगैर मॉडर्न कपड़े पहनकर घर से बाहर या मुलाजमत करने जाती हैं, क्योंकि हिजाब पहनकर भी इन्हें अक्सर मर्दों की बुरी नजरों का सामना करना पड़ता है। हिजाब का जो एक अलग से मुझे लगता है कि वो एक बोझ है जिसको आपने कैरी किया हुआ है अपने साथ, वो मुझे बहुत अजीब लगता है। मुझे लगता है कि मैं अपने काम में, अपने चलने फिरने में, अपनी मूवमेंट में उसके साथ आसानी फील नहीं करती हूँ। आज के दिन का मकसद ये पैगाम देना है कि खवातीन के पर्दे के साथ मर्दों को भी औरत की इज्जत और हया का ख्याल रखना जरूरी है। कैमरा टीम के हमरा सुहीरा तारिक, मुल्तान।